اگر کسی نے بنا کپڑوں کے یعنی برہنہ ہو کر کے غسل کیا تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رکے ابھی کہیں جانا مت، بڑے بھائی مولانا یونس کی پوری بات سن کر کے جانا۔ دینی اسلامک نالج کی آج ہمیں تمہیں بہت ضرورت ہے میرے عزیزوں، اسی لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ آپ کو اسلام سے، دین سے ریلیٹڈ آپ کو نالج ہونی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کب کون سے موڑ پر کون سی بات آپ کے کام آ جائے، تو ہم سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے۔ انشاءاللہ بہت اچھے اور سچے پیغام آپ کو یہاں پر ملیں گے، کیونکہ دین اسلام کی نالج ہونا ہر دور میں بہت ضروری ہے میرے عزیزوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں غسل کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے، اور دوسری چیز انسان کے اوپر کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز عورتیں غسل کیسے کریں، اور عورتوں کو کن کن احتیاطوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور چوتھی چیز غسل کب آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، غسل کب کرنا سنت ہے اور کب کرنا مستحب ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور سب سے مین کہ اگر کسی نے بنا کپڑوں کے یعنی برہنہ ہو کر کے غسل کیا تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، کپڑے پہن کر ہی غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اب آئیے گا، ان تمام چیزوں کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مسائل وہ ہیں جو انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور پاکی اور ناپاکی انسان کے ساتھ روزانہ کا معمول ہے، لگی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی انسان، جیسے مان لیجیے گا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو نائٹ فیل ہو گیا، یہ سوتے میں منی خارج ہو گئی تو انسان ناپاک ہو گیا، تو غسل کیسے ہوگا؟ یا میاں بیوی ہیں، دونوں ہم بستری کر لیے، تو عورت غسل کیسے کرے گی، مرد غسل کیسے کرے گا، اور کن کن چیزوں سے ہمارے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر الحمدللہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو سیکھنے کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو اسے جو ہے مکمل دیکھے گا، انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کو بہت ساری جانکاری بھی حاصل ہوگی۔ تو آئیے گا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ درود پاک تمہارے لیے طہارت ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اب دیکھیے گا، جیسے کیمیائے سعادت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن القریبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے احتلام ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس وقت غسل کر لوں۔ میں نے اس وقت غسل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو میرے دل نے کہا کہ نہیں، ابھی تو بہت رات باقی ہے، صبح جب فجر کا وقت ہوگا تو تب غسل کر لینا، اب آرام سے سوتے رہو۔ تو میرے دل نے یہ چاہا، میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں ابھی مت کرو، صبح کر لینا۔ تو اسی وقت میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے فوراً اٹھا، اور پھر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ابھی میں نفس کو سزا دوں گا اور ابھی غسل کروں گا، اور غسل بھی کپڑوں سمیت کروں گا، کپڑوں سمیت غسل کروں گا، اور اپنے بدن پر ہی جو ہے کپڑوں کو سکھاؤں گا۔ اور سردیوں کی راتیں تھیں، اب ظاہر سی بات ہے جب سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں اور انسان ناپاک ہو جائے تو اسے غسل کرنے میں کتنی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کے دل میں ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے کہ بس جلدی سے میں پاک ہو جاؤں اور میری نماز نہ چھوٹ جائے، تو اس لیے انسان جلدی غسل کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو حضرت ابن القریبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کو یہ سزا دی، انہوں نے اٹھے فوراً اسی وقت، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے غسل کیا کپڑوں سمیت، اور پھر وہ کپڑے اپنے بدن سے اتارے نہیں، اپنے ہی بدن پہ ان کپڑوں کو انہوں نے سکھایا۔ تو سردی کے موسم میں اگر تھوڑا ٹھنڈا گیلا کپڑا بھی لگ جاتا ہے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی کہ آئندہ مجھے ایسا مشورہ
मेरा नफ्स कभी नहीं देगा। ये कीमिया सआदत के अंदर लिखा हुआ है। अब आइएगा, अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ तो गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है वो समझ लीजिएगा, और किन किन चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। और उससे पहले कि गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं वो आप जरा समझ लीजिए। सबसे पहला सवाल कि अगर किसी शख्स ने बरहना होकर यानी अपना पूरा लिबास उतार के, पूरे कपड़े उतार करके गुस्ल किया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें कुछ कंडीशन है, इसकी कुछ सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर गुस्ल करने वाला शख्स ऐसी जगह गुस्ल कर रहा है जो कि बिल्कुल खुला है, खुले मैदान में जहां पर लोगों का आना जाना है या घर वाले वहां पर मौजूद हैं या लोग निकल रहे हैं, तो अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने सत्र को छुपाए, यानी नाव से लेकर के घुटनों तक का छुपाना ये फर्ज है। इसे सत्रे औरत कहा जाता है, शरीयत की जबान में इसे सत्रे औरत कहा जाता है, यानी इतने सत्र का छुपाना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो नेकर पहनकर, है ना, जांघिया यानी नेकर पहनकर और ये अंडरवियर पहन करके गुस्ल कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, घर वालों के सामने नहा रहे हैं, या मान लीजिएगा रास्ते वगैरह में कहीं हैंडपंप वगैरह लगा है वहां नहा रहे हैं, या नदी वगैरह में नहा रहे हैं जहां पर लोगों का आना जाना है। तो जो लोग अंडरवियर पहन करके, नेकर पहन करके, जांघिया पहन करके नहाते हैं, गुठन्ना पहन करके नहाते हैं ना, तो वो यूं समझिएगा कि गुनाहगार होते हैं। क्या होते हैं? गुनाहगार, क्योंकि नाव से लेकर के घुटनों तक का छुपाना ये फर्ज है। अगर कोई शख्स अपने घुटने दिखाता है, जांघें दिखाता है ना, तो ये हराम है। क्या है? हराम है। गुस्ल तो हो जाएगा उसका, लेकिन गुनाहगार होगा, उसने हराम काम किया। पहली सूरत ये हो गई। और अगर आप ऐसी जगह नहा रहे हैं जैसे कि आज के दौर में गुस्ल खाने मौजूद हैं, हमाम मौजूद हैं, तो अगर आप गुस्ल खाने के अंदर नहा रहे हैं, ऊपर से छत पटी हुई है, चारों तरफ से बिल्कुल लॉक है, बंद है, तो गुस्ल खाने में अगर आप नहा रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लुंगी पहन करके भी नहा सकते हैं। और अगर आपने पूरे कपड़े उतार दिए, सारे कपड़े उतार करके अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है, कोई आपको वहां नहीं देख रहा है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा बहुत सारे लोग गुस्ल खाने में जब गुस्ल करते हैं बरहना होकर बिना कपड़ों के, तो इसमें एक चीज का एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिएगा आप गुस्ल कर रहे हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से, तो हमें गुस्ल करते वक्त किबले की तरफ को, जिधर भी आपकी तरफ किबला हो उस तरफ को आपको अपना ना अगला रुख करना है और ना अपनी पीठ करना है, क्योंकि आप बरहना है, बिना कपड़ों के हैं। जब भी आप बिना कपड़ों के नहाएं, ठीक है, तो काबे की तरफ को ना अपनी पीठ करें ना अपना अगला हिस्सा करें। क्यों? इसलिए कि शरीयत में मना किया गया है और ये बेअदबी है। ठीक, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब तीसरा मसला आपको मैं और बता दूं। अब देखिएगा जैसे आपने गुस्ल किया बिना कपड़ों के, ठीक है, अभी मैं आपको गुस्ल करने का तरीका बताऊंगा और गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं। आपने गुस्ल कर लिया बिना कपड़ों के। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के जहन में ये वाली बात आती है कि हम जो बरहना होकर बिना कपड़ों के गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे हैं और हमने इसमें वुजू भी किया, तो क्या हम इस वुजू से, जो हमने वुजू किया है, क्या हमारा ये वुजू माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जो हमने गुस्ल में वुजू किया है इससे हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? ये टेंशन आ जाती है। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, जैसे मान लीजिएगा उन्होंने गुस्ल कर लिया और जाहिर सी बात है जब गुस्ल किया तो वुजू भी किया होगा। अब जब उन्होंने वुजू भी कर लिया तो अब वो नहाने के बाद कपड़े उपड़े जब पहन लेते हैं ना, तो फिर वो दोबारा वुजू करते हैं। नहाने के बाद बाहर आके फिर वो वुजू करते हैं, फिर वो नमाज के लिए जाते हैं। तो इसका मसला भी आप जरा समझ लें। अगर कोई बरहना होकर के गुस्ल कर रहा था बिना कपड़ों के और उसने उसमें वुजू भी कर लिया, ठीक है, तो उसका वुजू हो गया, अब दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। ये जो कराहत थी, ये जो हराम कारी थी ना,
जो सबके सामने हम नहा रहे हैं और हमारा सत्र, हमारे घुटने, हमारी जांघें दूसरे लोग देख रहे हैं, तो ये हराम था दिखाना। इसकी वजह से आपको मना किया गया कि बाहर लोगों के सामने नेकर पहन करके या ये जांघिया पहन करके, अंडरवियर पहन करके मना किया गया नहाने से। अगर आप गुसल खाने में नहा रहे हैं तो नेकर पहन के नहा सकते हैं, अंडरवियर पहन के नहा सकते हैं और लुंगी पहन के नहा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर जब भी आप बाहर नहाएं, जैसे जहां पर लोगों का आना जाना हो, लोग वहां पर मौजूद हो और गुसल खाने का इंतजाम नहीं है, तो अगर आप ऐसी जगह पर नहा रहे हैं तो फिर आप लुंगी बांध लें। अगर लुंगी नहीं है तो कोई रंगीन मोटा कपड़ा अपने चारों तरफ से लपेट लें घुटनों तक, जिससे कि आपका सत्र दिखाई ना दे। और हल्का कपड़ा बिल्कुल भी ना लपेटें, क्योंकि उससे जो है जिस्म की रंगत दिखाई देने का अंदेशा होता है। तो शरीयत ने जो है बहुत खास ख्याल रखा है इन चीजों का। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब आपको ये मालूम हो गया किस तरीके से जो है आप गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो बरहना होकर बिना कपड़ों के भी आपके गुस्ल हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल खाने में आप नहाएंगे। और अगर बाहर कहीं गुस्ल आप कर रहे हैं अंडरवियर पहन करके, आपका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन आप फिर गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने लोगों को अपना सत्र दिखाया जिसका छुपाना फर्ज था, जिसका छुपाना जरूरी था। अब आइएगा, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है वो आप जरा समझ लीजिएगा, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिएगा, जैसे कि बाहरी शरीयत के अंदर गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका लिखा है, वो ये है कि गुस्ल के अंदर 3 फराइज हैं। कितनी चीजें फर्ज है गुस्ल में? 3। पहला, कुल्ली करना, मुंह भर करके कुल्ली करना। ऐसे कुल्ली करना कि मुंह के हर पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए, और जिसे कहते हैं गरारा करना। अगर आपका रोजा नहीं है तो फिर आप गरारा भी करिएगा, और अगर रोजा है तो रोजे की हालत में गरारा करना ये मना है। ठीक है, तो आप गरारा करिएगा इस तरीके से। गरारा करने के बाद में जबकि मुंह के हर पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए, फिर आप कुल्ली कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुंह भर करके कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना। और दूसरा जो फर्ज है वो ये है, गुस्ल में नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी डालना नहीं, नाक में पानी चढ़ाना। चढ़ाने का मतलब ये है कि आपने चुल्लू में पानी ले लिया और लेने के बाद इस तरीके से आप नाक पर रखिएगा, हल्के से धीरे से सांस लीजिएगा, ताकि आपके ये जो नरम हड्डी है ना, ये बांसा है, यहां तक आपका पानी पहुंच जाए। अगर नाक की नरम हड्डी तक अंदर तक पानी नहीं पहुंचा और वो जगह सूखी रह गई, खुश्क रह गई, तो शरीयत में लिखा है कि फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। बड़ी बारीकी है, इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और ऐसे जल्दी जल्दी गुस्ल कर लिया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा मेरे प्यारे अजीज, और हम नापाक ही रह जाएंगे। हम नापाक ही रह जाएंगे, हमारा गुस्ल नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जब गुस्ल नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी, है ना। तो इसलिए हमें इन बारीकी जो है हमारे गुस्ल में, वुजू में, इसका समझना आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अच्छे से इस पर अमल कर सके और अच्छे से हम पाकी हासिल कर सके। तो पहला फर्ज मुंह भर के कुल्ली करना गुस्ल में, और तीसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक। और तीसरा फर्ज है पूरे बदन पर पानी बहाना, पूरे बदन पर एक मर्तबा पानी बहाना। तो ये 3 फराइज हो गए गुस्ल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। अगर मान लीजिएगा, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे जो पढ़े लिखे होते हैं उनको तो याद ही रहता है ना, लेकिन कुछ लोग बेचारे वो होते हैं जिन्होंने सुन के याद कर रखी होती हैं सारी चीजें, तो उनके जहन में ये सारी चीजें नहीं रहती हैं। अगर पूछ लिया जाता है भाई गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है, तो पता ही नहीं होता कि भाई कितने फराइज हैं गुस्ल में, और जब पता ही नहीं होगा तो हम उन फर्जों को कैसे अदा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पाकी और नापाकी के मसाइल। अब आपने गुस्ल के 3 फराइज याद कर लिए, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 फराइज हैं गुस्ल में। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं। अगर आपने किसी को ये फराइज बता दिए और गुस्ल करने का तरीका सिखा दिया, तो जब तक वो गुस्ल करके, वुजू करके नमाज पढ़ेगा, इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलता रहेगा। ये हो गए फराइज हो गए। अब आइए गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है वो आप जरा समझ लें। गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका ये है, सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुलेंगे, जैसे कि वुजू में, नमाज में जो वुजू करते हैं ना,
बिल्कुल सेम वैसे ही आपको वजू करना है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना करना है, अपने हाथों को गट्टों तक धुलने के बाद फिर आप ये करेंगे कि अब आपके जिस्म पे जहां भी जिस जगह भी नापाकी लगी है, नजासत लगी है, उसे आप दूर कर दें, उसे आप धुल दें, उसे दूर कर दें। उसके बाद फिर आप वजू करिएगा, कुल्ली करिएगा, नाक में पानी डालिएगा, चेहरा धोइएगा, दोनों हाथ कोने समेत धोइएगा। उसके बाद जो है सर का मसा करिएगा, और मसा करने के बाद अच्छी तरीके से अगर आप ऊंची जगह पर बैठ करके गौसल कर रहे हैं तो अपने पैरों को भी धुल लीजिएगा, और अगर नीची जगह पर गौसल कर रहे हैं तो पहले आप अच्छे से गौसल कर रहे हैं, नहा लें, फिर बाद में जब आप निकल करके जाएं तो फिर बाद में पैरों को धुल लीजिएगा। तो ये आपका जो है गौसल करने का मुकम्मल तरीका हो गया। अब यहां पर चंद एहतियातें हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसे आप बड़े गौर से सुनिएगा। हमारी इस्लामी बहनें भी इसे सुने और इस्लामी भाई भी। देखिएगा, हमने पानी भी बहा लिया पूरे बदन पर, अच्छे से गौसल कर लिया, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है अपने हाथ में अंगूठी पहने हुए होते हैं, छल्ला वगैरह अंगूठी पहने होते हैं। बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहनें नाक में नथनी पहनी होती है, कानों में बाली वगैरह पहनी होती है, पैरों में छल्ले वगैरह पहने होती हैं। तो इन दोनों लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है, जैसे अंगूठी अगर मर्द पहने हैं तो उसे अच्छी तरीके से इस तरीके से हटा बचा के आगे पीछे करके उसको जो है ना पानी पहुंचा ले उसकी जड़ में, क्योंकि कभी कभी इतनी टाइट होती है ना, इंसान हाथ वाथ धो लेता है लेकिन उसके अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो अगर बाल के बराबर भी आपके जिस्म में अगर कोई जगह सूखी रह गई तो बिल्कुल साफ शरीयत, हमारे शरीयत में लिखा है कि इंसान पाक नहीं होगा। जी हाँ, पाक नहीं होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे आप समंदर में क्यों ना नहा लें। अगर ये आपकी उंगली के अंदर जो छल्ला या अंगूठी वगैरह पड़ी है ना, उसको नहीं हिलाया और पानी वहां तक उसकी जड़ में नहीं पहुंचा तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। इस चीज का मर्दों को ख्याल रखना, और हमारी इस्लामी बहनों को इस चीज का ख्याल रखना, जो कानों में, नाक में, पैर की अंगूठी में जो नथनी वगैरह पहनी है, बाली वगैरह पहनी है, तो उनको अच्छी तरीके से, नाक है तो इसको अच्छे से घुमा लें और पानी पहुंचा लें अंदर, इसे भी घुमा लें, अच्छे से पानी पहुंचा लें, और पैरों के में जो छल्ले वगैरह हैं उसको घुमा के पानी पहुंचा लें। तो इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। अगर इसमें हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें ये लगेगा कि भाई हम तो नहा लिए, गौसल कर लिए, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आपका गौसल नहीं होगा। अगर बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो फिर आपका गौसल नहीं होगा। अब आइएगा, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारे ऊपर गौसल फर्ज हो जाता है, ये आप जरा ध्यान से सुन लें। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुस्ल कब सुन्नत है, कब फर्ज है और कब मुस्तहब है। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इन 5 चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे आप मान लीजिए आप पाक हैं, बिल्कुल पाक है, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर इन 5 चीजों में से कोई एक चीज आपके जिस्म में पाई गई तो फिर आपका गुस्ल टूट जाएगा, आप नापाक हो जाएंगे, फिर से आपको गुस्ल करना पड़ेगा। हाँ, अब वो 5 चीजें कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। जैसे मान लीजिएगा आप सो रहे थे और सोते सोते आपको एहतलाम हो गया, आपकी मनी शहवत के साथ खारिज हो गई और आपके कपड़ों को भी लग गई, तो आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। या मान लीजिएगा आपने मुश्त जनी की, अपने हाथ से ही अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया, यानी हैंड प्रैक्टिस आपने की, तो जो आपको शहवत तारी हुई, उस शहवत के आने से जो मनी निकली, तब भी आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। बहुत सारे लोग मुश्तजनी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है ये अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, जैसे पेशाब हमने कर लिया, समझो ये भी हम कोई बात नहीं, कोई इससे कोई गुस्ल फर्ज नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये वाली बात रहती है, अगर किसी की मनी खारिज हो जाती है, शहवत के साथ निकल आती है, तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है एहतलाम, यानी सोते में मनी का निकल जाना। सोते में मनी का निकल जाना, आप सो रहे थे, एहतलाम हो गया, आपको नाइट फेल हो गया,
تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ نمبر 3، شرمگاہ میں حشفے کا داخل ہو جانا، یعنی سپاری کا داخل ہو جانا، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا۔ جو سپاری ہوتی ہے، جو نفس کا اگلا حصہ ہوتا ہے، جو کیپ ہوتا ہے، اگر وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، میاں کے اوپر بھی اور بیوی کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے حیض سے فارغ ہونا، چاہے وہ عورت ہو، اگر کوئی عورت ہے اور اس کو پیریڈ آ گیا، اب پیریڈ آیا، اس کو حیض آیا، جیسے ہی وہ حیض ختم ہوا فوراً اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلدی سے غسل کرے اور نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا ٹائم بڑھاتی رہتی ہیں اور ٹائم نکال دیتی ہیں کہ نماز سے بچے رہیں، یہ اس طرح کا ذہن آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ جیسے ہی حیض ختم ہوگا، پیریڈ ختم ہوگا، فوراً ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور انسان کو جتنا بھی ہو پاک رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی اور ہماری یہ آرزو اور یہ تمنا ہوتی ہے، اے اللہ، اے پروردگار، ہماری جب بھی موت آئے نا، ہم پاک ہوں، ہم پاک و صاف ہوں، اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جب بھی ہماری موت آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حیض سے فارغ ہونے کے فوراً بعد جو ہے عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے نفاس، یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ جیسے مان لیجیے گا کسی عورت کی ڈیلیوری ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، اور بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جو خون آتا ہے 40 دن تک، ہے نا، اور تمہیں یہ بات مشہور ہے کہ عورت بچے پیدا ہونے کے 40 دن تک جو ہے ناپاک ہی رہتی ہے، اس کو بلڈ وغیرہ آتا رہتا ہے، تو اسے نفاس کا خون بولتے ہیں۔ تو اس کی جو مدت ہے وہ اکثر مدت وہ 40 دن ہے، اور اگر کسی عورت کو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن آ کے وہ نفاس کا خون رک گیا تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ 40 دن تک نہانا ہی نہیں ہے، 40 دن تک جو ہے عورت ناپاک ہی رہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر 5-10 دن میں، 8 دن میں، 3 دن میں، 15 دن میں اگر بلڈ آنا بند ہو گیا، خون آنا رک گیا، تو سمجھو وہ عورت پاک ہو گئی، غسل کر سکتی ہے، غسل کر لے گی، اس کے بعد نماز روزہ وغیرہ کر سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، مشت زنی، جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کرتے ہیں وہ اسے دھیان سے سمجھ لیں، اسے دھیان سے سمجھ لیں۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت نے جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرتے ہیں، وہ اسے ضرور دھیان سے سنیں۔ دیکھیے گا، امام اہل سنت اعلی حضرت جو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص مجلوق ہے، مجلوق بولتے ہیں مشت زنی کرنے والے کو، یعنی ہست میتھن کرنے والے کو مجلوق بولا جاتا ہے، کہ مشت زنی کرنے والا ہے، اس فعل سے نہیں مانتا، یعنی وہ بار بار مشت زنی کرتا ہے، اس کی یہ عادت لگ گئی ہے، اس کی یہ عادت پڑ گئی ہے، وہ اس فعل سے باز نہیں آتا، اس کام سے نہیں مانتا۔ ہر چند اس کو سمجھایا ہے، آپ تحریر فرمائیں کہ اس کا کیا حشر ہوگا اور اس کو کیا دعا پڑھنا چاہیے جس سے اس کی عادت چھوٹ جائے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت سے یہ بات پوچھی گئی مشت زنی کرنے والے کے تعلق سے، تو اب آئیے گا امام اہل سنت اعلی حضرت نے کیا جواب دیا، وہ آپ دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشت زنی کرنے والا شخص گناہ گار ہے، کیا ہے؟ گناہ گار ہے، عاصی ہے، اسرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، اور وہ فاسق ہے۔ حشر میں ایسوں کی، یعنی مشت زنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں گابھن ہوں گی۔ یہ جو ہتھیلیاں نا، یہ ہتھیلی یہ گابھن ہوں گی۔ گابھن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچے ہوں گے، جس طریقے سے عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بھینس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بھینس وغیرہ گائے وغیرہ گابھن ہوتی ہے نا، تو ویسے یہ ہتھیلیاں بھی حاملہ ہوں گی، پریگنینٹ ہوں گی، جس سے کہ دور سے ہی دکھائی دے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ ان ہتھیلیوں سے اس نے جو مشت زنی کی تھی، گناہ کیا تھا، اب ان کی ہتھیلی پھول کر کے ان کا پیٹ نکل آیا ہے، اور اس میں
जो है बच्चा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये गाबन होंगी, जिससे कि लोग देखने वाले देख करके मैदान महशर में समझ जाएंगे कि ये मुश्त जनी करने वाला शख्स है, इसकी हथेलियां गाबन हैं। और आगे फरमाते हैं कि हथेलियां गाबन होंगी, जिससे मजमा आजम में उनकी रुसवाई होगी अगर उन्होंने तौबा नहीं करी तो। अगर आपने मुश्तजनी कर ली है, आपसे ये गुनाह हो गया है, तो आप अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, ए अल्लाह आज के बाद हम ये गुनाह कभी नहीं करेंगे, ए परवरदिगार मुझे बचा ले, आज के बाद मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। तौबा कर ली। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह ताला माफ फरमाता है जिसे चाहे और अज़ाब फरमाता है जिसे चाहे। अब उसे पढ़ना क्या, अगर किसी शख्स की ये लत लग गई है मुश्तजनी की, वो बार बार अपने ऊपर गुस्ल फर्ज कर ले रहा है और उसकी ये आदत नहीं छूट रही है, तो उसके लिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने एक अमल और एक वजीफा बताया है, वो ध्यान से सुन ले। अगर कोई शख्स इस चीज को लेकर के परेशान है और वो अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज कर रहा है, तो फिर ये वजीफा जरूर करे। वजीफा ये है कि मुश्तजनी करने वाले को चाहिए कि ला हौल शरीफ की कसरत करे, यानी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसे कसरत से पढ़े। और नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करे, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करे। और नमाज़े सुबह के बाद बिला नागा सूरह इखलास शरीफ का विर्द रखे, ताकि शैतान उसका पीछा ना करे। 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, लाहौल बार बार पढ़ता रहेगा, सूरह इखलास की तिलावत करेगा, तो शैतान उसे फिर नहीं बहकाएगा। और जब शैतान उसे नहीं बहकाएगा तो फिर वो अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं करेगा। ये जो है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने बता दिया है। अब आइएगा, कब गुस्ल करना सुन्नत है और कब गुस्ल करना मुस्तहब है, ये आप जरा समझ लीजिएगा। देखिएगा, जुमा के दिन मान लीजिए आप पाक हैं, मान लीजिए आप कल नहाए थे, आज जुमा है, आप सोच रहे हैं मैं तो कल नहा लिया था, गुस्ल है, गुस्ल कब मैंने कल कर लिया था, अब तो मैं पाक हूं, ऐसे जाके नमाज पढ़ आऊंगा। तो लिखा है कि फतावा आलमगीरी के अंदर कि जुमे के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है ना, सवाब मिलता है। और ईद उल फित्र के दिन, है ना, जिसे मीठी ईद कहते हैं, ईद उल फित्र के दिन भी गुस्ल करना सुन्नत है। और बकरा ईद के दिन, अरफे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। और एहराम बांधते वक्त नहाना ये भी सुन्नत है। और कब गुस्ल करना मुस्तहब है, तो बहुत सारे मुस्तहबात इसके अंदर गिनाए हैं। ठीक है, वकूफ अरफात, वकूफ मुजदलफा, है ना, और हाजरी हरम, हाजरी सरकार आजम, और दुखूल मिना, जुमरों पर कंकरियां मारने के लिए। तो ये शब बारात में, शब मेराज में, इन तमाम रातों में जो है और दिनों में गुस्ल करना ये मुस्तहब है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, ये देखिएगा, मैंने जो भी आपको बताया गुस्ल करने का पूरा तरीका और किन किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो इस पूरे बयान का जो हासिल कलाम है वो यही है कि आपको, हमें, हमारे बच्चों को, सबको पाकी और नापाकी के जो मसाइल हैं उनका याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका मालूम होना जरूरी है, जिससे इंसान पाकी और नापाकी में तमीज रख सके, पाकी और नापाकी में वो तमीज कर ले। नहीं तो इंसान नापाक ही रहेगा और ना उसकी नमाज होगी और ना उसकी कोई दुआ कबूल होगी, वो घर में परेशानियां, मुसीबतें अलग आती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी मुकम्मल जो वीडियो आपने देखी है आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक आपको, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर भी अगर आपके जहन में कोई मसला है तो वो आप नीचे कमेंट करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी वीडियो में आपके कमेंट का जवाब जरूर दे दिया जाएगा। आप अपना नाम लिखें और कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में हर संडे को, अभी 1-2 हफ्ते के बाद, हर संडे को हम जितने भी लोगों के कमेंट आएंगी उसको हम लिखेंगे और लिखने के बाद इकट्ठा करके एक मुसलसल, ठीक है, सारी कमेंटों के ऊपर ही एक वीडियो बनाएंगे। हर किसी के सवाल का जवाब हर संडे को इंशाल्लाह दिया जाया करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।